Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Usman Ahmad Mansoor, lecturer in mathematics, Government Postgraduate College, Atak. Today we are going to start the course of tensor analysis. This course is basically a part of compulsory paper of University of Punjab, paper 4, MSc Mathematics Part 1, which is titled as Mechanics. In Mechanics paper, there is a section in which there comes two questions from tensor analysis. So I am going to follow the course of University of Punjab, but as you all people know that the course of University of Punjab normally covers 90% syllabus of all the universities. So I am going to start tensor analysis, and it is going to be a course in itself. Doesn't matter whether you are a student of University of Punjab or not. I am going to take this course in a general way, so you can take these lectures, and before wasting any time, just start the study of tensor analysis. What is a tensor? Roughly speaking, I can't give the abstract definition right now. Roughly speaking, tensor is the generalization of scalar and also the generalization of vector. But we have to wait and see that what kind of generalization is it. So, as always, the book I am going to follow is of Sham's outline, titled as Vector Analysis with an Introduction to Tensor Analysis. At the same time, I would follow the book Vector Analysis and Tensor Analysis by Dr. Nawazish. And last but not the least, I may also follow the book Vector and Tensor Analysis by L.D. Beg, Laldin Beg, the ex-chairman of GC University, Faisalabad. Okay, let's come towards the formal work. First of all, मैं define करूंगा space of n dimensions को. जिस तरह फिजिक्स के अंदर या ज्योमेट्री के अंदर आप 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन स्पेस की बात करते हैं, तो हम इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज भी कर सकते हैं थोड़ा सा. प्योर मैथ्स के अंदर जब आप बात करते हैं n डायमेंशनल स्पेस की, तो उससे मुराद नॉर्मली एक वेक्टर स्पेस होती है जिसकी डायमेंशन n होती है, या आप उससे मुराद ये भी ले सकते हैं कि वो एक वेक्टर स्पेस तो है विद डायमेंशन n, बट उसके ऊपर एक एडिशनल स्ट्रक्चर इनर प्रोडक्ट का भी मौजूद है. तो यहां हम किस सेंस में डायमेंशन को, स्पेस ऑफ n डायमेंशंस को ले रहे हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर लिखते हैं हम, बिकॉज हर एरिया के अंदर हो सकता है कि उसी टाइटल के साथ चीज आए मगर उसके इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ. स्पेस ऑफ n डायमेंशंस, इट कैन बी कैपिटल N, इट कैन बी लार्ज n. In 3-dimensional space, okay, when he is saying that 3-dimensional space, इसका मतलब आपने क्या लेना है, 3-dimensional space से सिंपली मुराद है R3 with a vector space और R3 with an inner product space. चूंकि मैकेनिक्स के अंदर टेंसर्स का थोड़ा रोल होता है, रिलेटिविटी में रोल होता है, एट द सेम टाइम इसका वेक्टर एनालिसिस के अंदर रोल होता है, तो वहां पर ये वेक्टर स्पेस कहना या इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस कहना, तो वो उससे थोड़ी सी प्योर वे में चीजों को ले जाने के बजाय सिंपली 3D स्पेस से मुराद क्या ले जाती है, R क्यूब. बट टेक्निकली स्पीकिंग R क्यूब इज जस्ट अ सेट ऑफ ट्रिपलेट्स. R क्यूब will be a 3D space once it is equipped with some vector space, the usual vector space, or the additional structure of inner product space. Anyways, let's make this study more simpler. In 3-dimensional space, we know that a point
is a set of three numbers. Okay, set of three numbers. यहां सेट से मुराद कोई वो मैथमेटिक्स वाला सेट उस सेंस में नहीं है। सेट से मुराद एक कलेक्शन है, सेट से मुराद एक जमा की हुई चीजें हैं। ओके, इज अ सेट ऑफ थ्री नंबर्स, और इन नंबर्स को क्या कहा जाता था? कोऑर्डिनेट्स। आप जानते हैं कि R3 में किसी खास मकाम पर पहुंचने के लिए आपको एक्स एक्सिस के अलोंग चलना है, वाई एक्सिस के अलोंग चलना है और जेड एक्सिस के अलोंग चलना है, सामने की तरफ अगर आप कर लें तो ये तीन डिस्टेंसेस जब कवर होंगे तो आप एक्चुअली उस पॉइंट पे पहुंच गए। और इसी पॉइंट को क्या दिया जाता है कि ये जो तीन डिस्टेंसेस चले हैं ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी हर पॉइंट के अगेंस्ट एक आपको तीन कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं और उन तीन कोऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट वही पॉइंट मिल रहा है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिकनेस बिटवीन दैम। ओके, in three-dimensional space, a point is a set of three numbers called coordinates, determined by specifying का मतलब क्या होता है? वजाहत करना। specifying a particular कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं। हमारी स्टडी के अंदर आप इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्या मतलब बना कि 3D स्पेस में जब आप कोई पॉइंट लेते थे तो वो पॉइंट बेसिकली क्या था? इज अ सेट ऑफ थ्री नंबर्स, यानी उस पॉइंट के अगेंस्ट आपको तीन नंबर्स मिल रहे थे जिन्हें कोऑर्डिनेट्स कह दिया जाता है। और ये कोऑर्डिनेट्स जो थी उनकी वजाहत कहां से होती है? वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया। अब इस बात का क्या मतलब है, इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो XYZ सिस्टम होता है जो रीन डिस्कार्ड्स ने डेवलप किया था और इसी को बेस बनाकर बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बने। रो फाई जेड आर थीटा फाई आर कोऑर्डिनेट्स of a point, and इसको आप कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह देते हैं। ऑफ अ पॉइंट इन रेक्टेंगुलर, अब इसकी तरफ आए, दिस इज द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, मतलब इसको ही बेस बनाकर ये भी फाइंड किए जाते हैं। रिलेशनशिप आपने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का चैप्टर जब आपने किया होगा तो वहां पर ये सारी चीजें देखी होंगी इस अंदाज में। ऑफ अ पॉइंट इन रेक्टेंगुलर, सिलिंड्रिकल, और ये थर्ड वन क्या था? दिस इज स्फेरिकल। स्फेरिकल पोलर भी बात दफा कह देते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस सिस्टम में है? रेक्टेंगुलर सिस्टम में। रेक्टेंगुलर सिस्टम में इसमें सिर्फ एक बता देता हूं क्योंकि वो बहुत सिंपल सा है। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। ये जी एक्सिस ऐसे नहीं है, ये आप जानते हैं अच्छे से, दिस इज टुवर्ड्स यू। ओके, तो यहां किसी पॉइंट P तक पहुंचना है आपने, तो व्हाट यू हैव टू डू, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x y z हैं, व्हाट डज इट मीन? या इन कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है कि पहला कोऑर्डिनेट से मुराद कि पहले एक्सिस के अलोंग उतना चलो, दूसरे कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू रखी है उसका मतलब है कि दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए के तहत उतना चलो और तीसरे के तहत उतना चलो। तो जब ये काम कर लोगे तो आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे। ओके,
अब इस सूरत हाल को बेस बनाकर मजीद कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो क्या किए गए, डेवलप किए गए। फॉर एग्जांपल सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इनका एक लिंकेज है आपस में। जब इसको बेस बनाकर ये फाइंड किया गया, इट मींस यहां से यहां आने का कोई तरीकेकार है और फिर यहां से वहां जाने का भी एक तरीकेकार है। यानी कि आप रेक्टेंगुलर सिस्टम से सिलिंड्रिकल सिस्टम में आ सकते हैं एंड फ्रॉम सिलिंड्रिकल सिस्टम से रेक्टेंगुलर सिस्टम में आ सकते हैं। मगर क्वेश्चन इज दिस कि क्यों आ सकते हैं? बिकॉज देयर एग्जिस्ट रियल एनालिसिस बिहाइंड। आगे चल के हम देखेंगे कि ये कैसे हो जाता है। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन विद द फ्लो। अ पॉइंट 3D के अंदर जब ये चीजें थी तो फिर n डायमेंशनल स्पेस के अंदर भी कोई पॉइंट की वजाहत होनी चाहिए ना। जब 3D स्पेस में ये वजाहत है तो इसी के मुताबिक, इसी एनालॉजी को डेवलप करते हुए आप क्या बात करेंगे? अ पॉइंट इन n dimensional space is, again n dimensional space means either a vector space or an inner product space, okay, with dimension n. By the way, what is meant by the dimension of a vector space? Elements, number of elements in the basis of vector space determines the dimension of vector space. A point in n dimensional space is by analogy, analogy मतलब मुशाबिहत, is by analogy a set of n numbers, a set of n numbers denoted by x sub 1. Sub means superscript, okay? यानी कि ये उसका पहला कोऑर्डिनेट बताया जा रहा है। अब n डायमेंशनल स्पेस में है और आप कहां से आइडिया जनरेट कर रहे हैं? 3D स्पेस से। तो इट मींस यू मस्ट हैव n कोऑर्डिनेट्स, बिकॉज 3D में कितने कोऑर्डिनेट्स थे? 3। अ सेट ऑफ n नंबर्स डिनोटेड बाय x sub 1। इसको मैं x sub 1 की बजाय अब x1 पढ़ूंगा, x2 पढ़ूंगा, x3 अप टू xn, where यहां मैं बताता चलूं, क्लियर करता चलूं कि ये 1 to up to n जो है आर टेकन, इनको लिया तो गया है नॉट एज एक्सपोनेंट्स। भाई एक्सपोनेंट्स नहीं है, एक्सपोनेंट्स का मतलब तो पावर होता है। ये ऐसा नहीं है कि x का स्केयर हो रहा है, ठीक है? ये नोटेशन है, यानी ये चीज बतला रही है कि ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, ओके? आर टेकन नॉट एज एक्सपोनेंट्स बट एज सुपरस्क्रिप्ट्स। जैसे मैंने शुरू में बताया, सुपर स्क्रिप्ट्स, ओके? बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट लिखने लगा हूं इसके बाद में। द फैक्ट दैट वी कैन नॉट विजुअलाइज points in spaces of dimension
higher than 3. You know your world is 3D space is in 3D space. तो इससे आगे की स्पेसेस को आप देख तो नहीं सकते, मगर मैथमेटिक्स का कमाल क्या है? द फैक्ट दैट वी कैन नॉट विजुअलाइज पॉइंट्स इन स्पेसेस ऑफ डायमेंशन हायर देन 3 has of course nothing whatsoever to do with their existence. सिंपल जबान में कि अगर एक चीज नजर नहीं आ रही तो इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है? दैट भी क्योंकि हम स्पेसेस ऑफ डायमेंशन हायर देन 3 को नहीं देख सकते, मगर इस बात का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि वो स्पेसेस जो 3 से बड़ी डायमेंशंस की हैं वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती. ओके, सो ये डिस्क्रिप्शन थी स्पेस ऑफ एन डायमेंशंस की, या दूसरे लफ्जों में वो तमाम पॉइंट्स जिनकी लोकेशन के लिए n कोऑर्डिनेट्स दरकार हैं. ओके, तो ऐसे तमाम पॉइंट्स की जो कलेक्शन है वो क्या है? n डायमेंशनल स्पेस, Rn में भी आप कह सकते हैं. नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस. Next topic, may not be the topic, just going with the flow. Coordinate transformation. Okay, what does it means कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने की जो डिस्कशन है, दिस इज इनफॉर्मली नोन एज कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, अब देखते हैं. लेट x1, x2, xn and x1 बार. मैं इसको नेक्स्ट टाइम में लिख देता हूं. x2 बार up to xn bar be coordinates of a point in two different frames of reference. Frames of reference मीन्स मुराद क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर एक ही पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए, यानी पहले सिस्टम में ये थे, दूसरे में ये थे. सपोज दैट, फर्ज करें, क्योंकि डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ फर्ज करना जरूरी है. देयर exist n independent relations, between the coordinates of the two systems
having the form, having the form. ओके, क्या कह रहा है? कहता है कि एक ही पॉइंट के ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक ही पॉइंट के ये दो जो है ना वो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स उसके अंदर हैं, ओके, दो डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में, यानी एक ही पॉइंट पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके थ्रू स्पेसिफाई हो रहा है और दूसरे में इसके थ्रू स्पेसिफाई हो रहा है, ओके। कहता है कि सपोज करें, क्योंकि ये n कोऑर्डिनेट्स है, कहता है कि n इंडिपेंडेंट रिलेशंस, यानी इंडिपेंडेंट रिलेशन मींस कि वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे रिलेशंस, ठीक है, n इंडिपेंडेंट रिलेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं इन दोनों सिस्टम्स में के अंदर पाए जाने वाले कोऑर्डिनेट्स के माबैन, ठीक है, और उनकी फॉर्म क्या है? हैविंग दी फॉर्म। फॉर्म ये है कि ये जो x1 बार है, ठीक हो गया, ये डिपेंड कर रहा है x1 x2 up to xn पे, यानी कि x1 बार इज अ फंक्शन ऑफ दीज n वेरिएबल्स। वेरिएबल्स ही है ना, क्योंकि अभी तक तो नहीं पता क्या है, ओके। यानी कि पहले सिस्टम के अंदर उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है, दूसरे सिस्टम में जो पहला कोऑर्डिनेट है वो फंक्शन है उन तमाम वेरिएबल्स का। अब आप ये डिस्कशन जानते हैं होंगे कि फंक्शंस और वेरिएबल्स ये सारी चीजें क्या हैं, यानी कि इसकी वैल्यू ऐसी पता नहीं चल जाएगी, इसकी वैल्यू एक फंक्शन के थ्रू पता चल रही है और वो फंक्शन डिपेंड कर रहा है पहले सिस्टम में पाए जाने वाले उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। लाइकवाइज x2 bar is also a function of x1 x2 xn, so on, कहीं पे xn भी तो आना is equal to xn बार अपनी वैल्यू के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है? x1 x2, यानी कि ये n फंक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। रिलेशंस उससे फिलहाल दावा या आगे चल कर देखते हैं, ठीक हो गया। इस पूरे सिस्टम को वन का नाम दे दें, कहता है कि ये n इक्वेशंस हैं which can be which we can indicate briefly by what? X bar k, which is equals to x bar k, जो कि अपनी वैल्यू के लिए डिपेंड कर रहा है x1 x2 अप टू xn के ऊपर, ठीक है। अब k जो लिखा है जनरली यूज किया है, यानी k कहां से कहां तक मूव करेगा? देखिए n इक्वेशंस थी ना, 1 2 अप टू n, मैंने उन सबको एक उस पूरे सिस्टम को एक इक्वेशन में लिखने की कोशिश की। अब k पे फिर कोई वेरिएशन डालनी पड़ेगी ना, यदि k1 भी होगा तो ये मिलेगा, जब k2 होगा तो ये मिलेगा, एंड करते करते आपको सो ऑन kn होगा तो आपको लास्ट इक्वेशन मिल जाएगी, ओके। तो ये हमने उस पूरी चीज को श्रिंक करके यहां पर लिख दिया और इसको आप 2 का नाम दे दें, दिस इज 2, वेयर it is supposed that the functions ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, involved are
सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस। अब ये जो आसान आसान अंदाज में चीजें लिखी जा रही है ना, बेसिकली एक कुछ थ्योरम्स की मदद से ये चीजें डिस्कशन में लिखी जा रही होती हैं। और क्योंकि इस कोर्स का मकसद उस अंदाज में एब्स्ट्रैक्शन को डील करना नहीं है जो नॉर्मली प्योर मैथमेटिक्स में होता है, तो इस वजह से हम इस अंदाज में चीजों को लिखा जाता है। एंड हैव कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये फंक्शन सिंगल वैल्यूड है, यानी इनका आंसर यूनिक है। ध्यान में आ सकता है क्यों यूनिक है? बिकॉज ये फंक्शन यूनिक होगा तो तभी तो आपको x1 बार की यूनिक वैल्यू मिलेगी इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर। ओके, क्योंकि पॉइंट जब इन पर्टिकुलर देखा जाएगा तो उसका पहला कोऑर्डिनेट यूनिक होना चाहिए। एक पॉइंट के, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट तो कोई से भी नहीं हो सकते। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि उसका पहला कोऑर्डिनेट 1 भी हो और 2 भी हो। यूनिकनेस रहनी चाहिए, ठीक है। फिर ये सारे फंक्शंस कंटीन्यूअस भी हों और इन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स लेके जो फर्दर फंक्शंस आ रहे हैं वो भी कंटीन्यूअस हो। कंटीन्यूअस डेरिवेटिव्स मींस कि डेरिवेटिव लेके जो चीज आए वो भी क्या होनी चाहिए? कंटीन्यूअस होनी चाहिए। ओके, जब आप ये इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस अब रखी, क्यों रखी? बिकॉज एक थ्योरम कैलकुलस का, ठीक है, हायर डायमेंशनल कैलकुलस का एक थ्योरम काम कर रहा है जिसकी मदद से आप क्या कह सकते हैं कि जब इन सेट ऑफ इक्वेशंस की ये वाली बैकग्राउंड के पीछे डिस्कशन की गई है वो ली जाए और उन पर ये कंडीशंस अप्लाई कर दी जाए तो क्या होता है? देन कन्वर्सली मींस ऑपोजिट वे में जब आप इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस रख रहे हो तो क्या हो रहा है? टू ईच set of coordinates, to each set of coordinates x1 bar, x2 bar up to xn bar, there will correspond a unique set। और ये सेट कौन सा होगा? A unique set x1, x2 up to xn। मैं एक्सप्लेन करता हूं। गिवन बाय, पूरी बात लिख के मैं एक्सप्लेन करता हूं। गिवन बाय x1 is equal to x1 of x1 bar, x2 bar up to xn bar। x2 is equals to x2 of x1 bar, x2 bar up to xn bar। Continuing in the same way, xn is equals to xn of x1 bar, x2 bar up to xn bar। और ब्रीफली इसका पीछे हमने किया था, ब्रीफली वी may write, या we can write briefly, we can write x k is equal to xk of x1 bar, x2 bar up to xn bar। अब k के ऊपर वेरिएशन लगा दें
1 2 अप टू n, इसको 3 कह दें। ओके, तो थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या हुआ था। सबसे पहले कहा था कि दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में एक ही पॉइंट के दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ले लिया। पहले सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में x1 x2 अप टू xn कर दिया, दूसरे के अंदर x1 बार x2 बार अप टू xn बार असाइन कर दिया। तो ये दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में एक ही पॉइंट के दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आ गए। ओके, देन हमने क्या कहा कि सपोज किया कि n इंडिपेंडेंट रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसमें दूसरे पॉइंट के अंदर, दूसरे रेफरेंस सिस्टम के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं उस पॉइंट के, वो अपनी वैल्यूज के लिए डिपेंड कर रहे हैं थ्रू सम फंक्शन ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन फर्स्ट रेफरेंस सिस्टम। ओके, और वो मैंने लिख के बताया था, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या थी, ये। फिर हमने इन फंक्शंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग किस्म की कंडीशंस ली। वो स्ट्रॉन्ग किस्म की कंडीशंस कौन सी थी कि these functions must be single value, यानी they must possess a unique answer, continuous, as you all know what is continuity, कि पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू उस फंक्शन की बराबर हो जाए, और फर्दर डेरिवेटिव्स लेके जो फंक्शंस आ रहे हैं they must also be continuous। तो ये कंडीशंस जब रखी गई और एक थ्योरम बैकग्राउंड पे जो था वो कर रहा था काम, तो वो कहता है कि जब आप इन सेट ऑफ फंक्शंस पे ये कंडीशन रखते हो तो जवाबन आपको कन्वर्सली मतलब कि ऑपोजिट वे में आपको क्या मिलता है। वो कहता है कि अगर दूसरे सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स अपनी वैल्यू के लिए पहले सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहे थे थ्रू सम फंक्शन, तो यहां से आप अदरवाइज भी बात कर सकते हो, यानी कि अब पहले सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो भी थ्रू सम फंक्शन एक्सप्रेसेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेकंड सिस्टम। ओके, फायदा क्या है सब डिस्कशन का कि जब दूसरे सिस्टम से पहले में जाने का रास्ता मुहैया था तो वो रास्ता फंक्शंस वाला था, और उन पे ये स्ट्रॉन्ग कंडीशंस लगाकर आपने क्या किया, वहां से इधर आने का भी रास्ता ढूंढ लिया। यानी पहले सिर्फ आप इधर से इधर आ रहे थे, तो इस सोर्स पे, इस पाथ पे आपने कुछ स्ट्रॉन्ग किस्म की कंडीशंस रख ली, तो थ्रू द वर्च्यू ऑफ दोस स्ट्रॉन्ग कंडीशंस यू कैन नाउ मूव टुवर्ड्स दिस वे। ओके, फर्स्ट यू वर कमिंग टुवर्ड्स दिस, then applying certain conditions you have the ability to come towards this, और उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो पता चला कि फिर सिनेरियो ये है कि ये तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो रही है, यानी एक कोऑर्डिनेट से दूसरे में आप जा रहे हो, दूसरे से पहले में आप आ रहे हो। तो 2 और 3 the relations, बेसिकली ये फंक्शंस हैं, the relations 2 और 3 defines, यानी कि रिलेशन 2 को देख लिया जाए तो वो क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को define a transformation of coordinates from one frame of reference to another। ठीक है, और अगर 2 और 3 को कंबाइन वे में देखा जाए तो आप फ्रॉम वन रेफरेंस सिस्टम टू अनदर एंड वाइस वर्सा एंड कन्वर्सली, यानी दोनों तरफ काम हो रहा है। ओके, तो ये डिस्कशन थी हमारी अभी तक की स्पेस ऑफ n डायमेंशंस, एंड आफ्टर दैट आई हैड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इन अ जनरल वे। सो वेरी क्विकली इससे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं या आर्टिकल के ऊपर बढ़ते हैं, विच इज आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन।
हेडिंग क्या होगी? समेशन कन्वेंशन। आप इसको आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन भी कह सकते हैं। तो थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि ये क्या चीज है। वेरी सिंपल। बेसिकली कैंसर का काम बहुत लंबे चौड़े एक्सप्रेशंस को श्रिंक करके लिखना है सादा लफ्जों में। तो देखते हैं हम उस चीज की जाने बढ़ रहे हैं या नहीं। इन राइटिंग एन expression such as a1 x1। अब ये x1 से बना तो पावर 1 नहीं है, x1 इज अ वेरिएबल, प्लस a2 x2 प्लस अप टू प्लस an xn। we can use the short notation। आप जानते हैं अच्छे से कि समेशन का साइन यूज किया जाता है। सीक्वेंसेस सीरीज आपने बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है। यू नो हाउ टू राइट दीज थिंग्स। यानी कि अब ये हो क्या रहा है कि ए की सबस्क्रिप्ट में भी 1 to n वेरी कर रहा है और x के सुपरस्क्रिप्ट के अंदर भी 1 से n तक वेरिएशन हो रही है। यानी कि दिस इज समथिंग लाइक दिस। अब आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, तो आप इसको जे कह दें, और अब ये जे के ऊपर वेरिएशन है 1 से n तक। यानी कि जे को 1 से n तक चलाते जाओ और जो जो टर्म मिलती जा रही है सबको ऐड करते जाओ। यानी इसका यही मतलब है। तो अभी तक तो कोई नई चीज नहीं आई। समेशन कन्वेंशन के अंदर देखते हैं एंड इवन शॉर्टर नोटेशन। कहता है इससे भी ज्यादा शॉर्टर नोटेशन की बात की गई है। एंड इवन शॉर्टर नोटेशन इज सिंपली, कहता है इससे भी ज्यादा शॉर्ट नोटेशन क्या है, इज सिंपली टू राइट इट as a sub j x sub j। और यहां पर क्या कन्वेंशन अडॉप्ट की गई है? कन्वेंशन मीन्स रिवाइज, वेयर वी अडॉप्ट द convention that whenever an index। अब इंडेक्स से क्या मुराद है मैंने डिफाइन नहीं किया इंडेक्स को, तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं उसको। इंडेक्स मींस सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, यानी कि या वो बेस पे लिखी जा रही है या वो पावर की जगह पे लिखी जा रही है। इज repeated in a given term we are to sum over that index from 1 to n unless otherwise specified. This is called summation convention or Einstein summation convention।
summation convention. Clearly, last line पे आ रहा हूं. Clearly, instead of using the index j हमने यूज की थी, we could have used any other letter. यानी आप उसकी जगह p भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. और फिर ये अगर p होगा तो ये कैसे लिखा जाएगा? a sub p x sub p and so on, जो भी आ सकता है आपके पास. Okay, so this is the definition of summation convention. तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं. शुरू में क्या लिखा कि ये जो सम्स लिखे जाते थे बड़े लंबी चौड़ी टर्म्स के, मिसाल के तौर पे 100 टर्म्स ऐड अप हो रही हैं, तो उनको शॉर्ट वे में लिखने के लिए कन्वेंशन निकाली गई. ठीक है, समेशन के अंदर लिखा गया. इससे भी ज्यादा एक शॉर्ट काम क्या किया गया कि उसने कहा कि आप इस समेशन को रिमूव कर दो. अब समेशन रिमूव होगी, समेशन तो किसी इंडेक्स के ऊपर होती. ठीक है, यानी जैसे यहां पर ये आपकी इंडेक्स है ना, जिसके ऊपर वेरिएशन आ रही है, जिसके तहत चीजें सम अप हो रही हैं. ओके, उसने कहा कि सिंपली आप इस समेशन के साइन को रिमूव कर दो. वेयर वी अडॉप्ट द कन्वेंशन, जब आपने यहां से रिमूव कर दिया तो फिर कन्वेंशन, अब ऑब्वियसली बात है आप इसके और इसके सेम मीनिंग्स ले रहे हैं और उसके साइन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर कोई कन्वेंशन बतानी चाहिए, फिर कोई असूल बताना चाहिए कि जब भी ये लिखा हुआ हो तो लोगों के माइंड में वो असूल आ जाए. ठीक है, वो क्या है? दैट व्हेनेवर एन इंडेक्स, जब भी कोई इंडेक्स चाहे वो सबस्क्रिप्ट में हो या सुपरस्क्रिप्ट में हो, ठीक है, वो रिपीट हो रही हो किसी टर्म के अंदर. जैसे जे है, अब ये एक बार सुपरस्क्रिप्ट में आ रहा है और एक बार सबस्क्रिप्ट में आ रहा है, मगर ये रिपीट हो रहा है. यानी कि 2 बार जब आपको एक इंडेक्स मिल रही है, ठीक है, और इंडेक्स से मुराद क्या है? वो सुपरस्क्रिप्ट भी हो सकती है और सबस्क्रिप्ट भी हो सकती है. ठीक है, यानी कि अगर सुपरस्क्रिप्ट की 2 बार आ जाए या सबस्क्रिप्ट 2 बार आ जाए या एक बार वो सुपरस्क्रिप्ट में आ जाए, एक बार सबस्क्रिप्ट में आ जाए, तो तब भी यानी वो रिपीट हो. रिपीटेशन की जो मैनर्स हैं वो मैटर नहीं करते, रिपीटेशन मैटर कर रही है. जब वो रिपीट हो रहे हैं गिवन टर्म के अंदर, तो हम उस इंडेक्स के ऊपर सम कर रहे हैं. कहां से कहां तक? 1 से n तक. यानी कि यहां पर j है तो j पे सम हो रहा है 1 से n तक. यानी इट मींस a1 x1 plus a2 x2 plus up to an xn unless otherwise specified. यानी कि जब तक ऐसा एक्सप्रेशन लिखकर खुद से कुछ और स्पेसिफाई ना किया जाए, तब तक आप इस बात का जो मतलब लेते हो वही है जो इस कन्वेंशन के अंदर लिखा हुआ है. unless otherwise specified का ये मीनिंग है. This convention is called summation convention. ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? summation convention. और clearly इस इंडेक्स j के बजाय आप कोई भी इंडेक्स यूज कर सकते हो. You may use p, t, e, etc. etc. और उसके मुताबिक ये फिर लिखा जाएगा. ओके, सो उम्मीद है आज का जो आपका जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था टेंसर एनालिसिस के ऊपर वो बहुत अच्छा रहा होगा. मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें. जो क्यूरीज हैं उनको जरूर डिस्कस करें.